message. Assalamu alaikum. We were doing the topic functions, or in that topic of function, till now, what we have done. First, we revised the O-level functions. Then we did the inverse of quadratic function. If you want to find the inverse of a quadratic function to make x subject, we have to complete the square, mean the previous topic quadratics involve hoga. Then we did the graphical relation between f of x and f inverse x. So what's the graphical relationship between f and f inverse? Both are reflection of each other over the line y is equal to x. Then in the last class, we did the composite function, the combination of two or more than two functions. And now we will do domain and range of a function. Okay. If you have f of x is equal to, suppose, 3x plus 1. If I ask you to find f of 2, then if you put x is equal to 2, 2 times 3, 6, 6 plus 1 will be 7. So what's your input value? It is 2. What's your output value? It's 7.
जो इनपुट वैल्यू है दिस बेसिकली दैट इज द एक्स वैल्यू। मीन आप एक्स वैल्यू 2 आपने पुट की, उसके अगेंस्ट एफ ऑफ एक्स आ गया या वाई आ गया 7। सो इनपुट वैल्यू इज 2 एंड आउटपुट वैल्यू, इसको हम इनपुट और आउटपुट भी कह सकते हैं, एक्स एंड वाई भी कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई होता है, चलिए मैं इसको एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ, सॉरी 7, अच्छा अच्छा आज उसका आप पूछ रहे हैं। सो अगर आप इक्वल टू 2 पुट किया, उसके अगेंस्ट y आपका 7 आ गया, y7 मीन f ऑफ x इज 7। ये जो इनपुट वैल्यू है इसी को हम नॉर्मली इनपुट वैल्यू मीन x वैल्यू को ही हम डोमेन वैल्यू कहते हैं। और उस डोमेन के अगेंस्ट, उस x वैल्यू के अगेंस्ट जो आंसर है y वैल्यू जो आउटपुट आती है उसको हम रेंज कहते हैं। So domain is input value, range is the output value. Domain is the x value and range is the y value. अब अगर इसी फंक्शन में आपको ये कहा जाए कि डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब डोमेन क्या है, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, इवन उनके बिटवीन जो डेसिमल्स हैं वो भी होंगे। तो आपको जब अगर इसकी रेंज फाइंड करनी हो, ये तो डोमेन होगी, अब अगर इसके अगेंस्ट रेंज फाइंड करनी हो तो यही डोमेन आप ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे उसके अगेंस्ट आंसर जो आ रहे हैं वो रेंज होगी। मीन 1 पुट करने से व्हाट विल यू गेट, इफ यू पुट 1 you will get 4, and if you put 5 so it will be 16. So if your domain is greater than equal to 1 and less than equal to 5, it means your range is greater than equal to 4 and less than equal to 16. डोमेन को x के लिए लिखा जाता है और रेंज को f ऑफ x के लिए लिखा जाता है। मीन ये जो y है इसको आप लिख सकते हैं f of x is greater than equal to 4 less than equal to 16. So your x value is domain and y value is your range. काफी वास्ट टॉपिक है ये, इसको पहले थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। अगर ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस हो, तो अगर डोमेन x वैल्यू है, रेंज y वैल्यू है, क्या हम कह सकते हैं कि जो x एक्सिस पे वैल्यूज होंगी वो डोमेन वैल्यू शो कर रही होंगी और जो y एक्सिस पे वैल्यू होंगी वो रेंज वैल्यू शो हो रही होंगी? ऐसा है कि नहीं? या हम अपने लिए यूं भी कह सकते हैं कि योर x एक्सिस इज बेसिकली डोमेन एक्सिस and your y-axis basically represents the range axis. Now, what is domain and range? Again, graphically. Graphically, domain वो x वैल्यू है जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। I am repeating. Domain is that x value against which your graph exists, and range is your y value against which your graph exists. What does it mean? For example, this is a graph of straight line.
whose one end you can see the circle is an empty circle. I left it empty intentionally, and the other end is a filled circle. If I further label this here, the x is say -3, and here x is say -1. Sorry, y is -1. And the graph is ending for x is equal to 4 and y is 3. अगर अब आपसे इस ग्राफ की डोमेन और रेंज पूछी जाए, तो मैंने थोड़ी देर पहले वो बताया था कि डोमेन वो एक्स वैल्यू होती है जिसके लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है। आप बताइए एक्स एक्सिस के अगेंस्ट कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है? -3 से लेकर 4 तक। आपका ग्राफ एक्स की कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है? -3 से 4 तक। सो इट मींस its domain will be if I write the domain in the form of inequality, because domain is usually written for x, so domain will be x is greater than -3 less than equal to 4. Do you know okay, what does this empty circle mean and what does this filled circle mean? कुछ याद है? कुछ ओ लेवल में ऐसा कुछ किया? एम्प्टी सर्कल और फिल्ड सर्कल। एम्प्टी सर्कल शो करता है कि वो नंबर, वो इंटीजर इटसेल्फ इंक्लूडेड नहीं है। मीन ये -3 इंक्लूडेड नहीं है। और ये फिल्ड सर्कल ये शो करता है कि 4 इज इंक्लूडेड, 4 इटसेल्फ इज इंक्लूडेड। तो आप देखिए मैंने जब इसकी डोमेन लिखी है तो मैंने कैसे लिखी है? x इज ग्रेटर देन -3, -3 के साथ मैंने इक्वल नहीं डाला, एंड लेस देन इक्वल टू 4 मीन 4 के साथ इक्वल है। So this is the domain. So I'm repeating, what is domain of a function? Domain of a function, domain of a function are those values of x for which your graph exists. So आपकी कौन सी x values के against graph exist कर रहा है? वो आप देख सकते हैं -3 से 4। अब हमने लिख ली इसकी रेंज, और रेंज के लिए मैंने क्या बताया? रेंज वो वैल्यूज ऑफ y हैं जिनके लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताइए ग्राफ कहां से लेकर कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है y वैल्यूज के लिए। अब वर्टिकली y एक्सिस को देखना है। वर्टिकली ग्राफ देखें तो आपका ग्राफ -1 to 3 एग्जिस्ट कर रहा है। सो y वैल्यूज, y एक्सिस आपकी रेंज को शो करता है। सो व्हाट्स द रेंज? बताइए। y इज ग्रेटर देन -1 लेस देन इक्वल टू 3। So the domain of this function is x is greater than -3 less than equal to 4 and range is greater than -1 less than equal to 3. So your x-axis decides about the domain and your y-axis decides about the range. x-axis के अगेंस्ट जहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है वो डोमेन एक्सिस है, और y-axis के जहां अगेंस्ट जहां ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है वो रेंज एक्सिस। नेक्स्ट एक ग्राफ में स्केच करूंगा, आपने उसकी डोमेन और रेंज लिखनी है। ये एंड पे एरो का क्या मीनिंग? ये जो एरो आ रहा है इसका मतलब द ग्राफ इज गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। ये स्ट्रेट लाइन है, ये एंड नहीं हो रही कहीं पे भी, लेकिन एक साइड मैंने इसकी उसको लिमिट रखा हुआ है। अपने पास इसकी डोमेन और रेंज लिखिए।
क्या नाम है आपका? आयशा, आप पहले के कब आई? एक और आयशा भी आपके साथ? याद आ, आयशा हसन। उस वक्त भी थोड़े से लेट थे, सिलेबस काफी अब जा चुका था, अब नया सेशन स्टार्ट है, उसमें भी आप लेट हो गए। चले बना, अब्दुल्ला डोमेन कुछ लिखी? लिख रहे हैं। तो डोमेन के लिए आप देखिए कि कौन सी एक्स वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। जी रिदा बताइए। यस, एक्स के लिए -1 पे भी ग्राफ है, 0 पे भी है, आगे भी है, हर एक्स की -1 और -1 से ग्रेटर। सो यू सेड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ऐसे ही अब्दुल्ला? सो -1 और -1 के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट का, ये एरो आगे चलता जा रहा है। देन इजलाल, व्हाट्स द रेंज? रेंज वो वैल्यूज ऑफ वाई हैं जिनके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट है। तो ग्राफ आपका +3 से बिलो चल रहा है, इससे नीचे नीचे ग्राफ आपके पास आ रहा है। सो वाई इज लेस देन इक्वल टू 3। डन। स्ट्रेट लाइन एक और कर लेते हैं। जी राइट द डोमेन एंड रेंज। जी समीन, व्हाट्स द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ऑफ दिस ग्राफ? सर आप सॉरी, आपने मेरा नाम लिया है, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। इब्राहिम जान। Sir, the both domain and range are all real numbers. ऐसे ही है। यस, हर एक्स वैल्यू पे ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है ना। सो आप x इक्वल टू 0 पे भी ग्राफ है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे, और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जा रहा है। -1, -2, -3, -4 और नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। सो इसकी डोमेन हुई नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर। इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, r। So x belongs to R mean x belongs to all real number, mean all real number, हर नंबर इसकी डोमेन में शामिल है। और इसी तरह y के लिए, y की भी हर वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इट्स रेंज इज ऑल रियल नंबर।
डन। सो स्ट्रेट लाइन से जरा हटते हैं, कर्व्स की तरफ आते हैं, स्पेशली क्वाड्रेटिक की तरफ। ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है और दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। ये नॉर्मली एरोज में, सॉरी कर्व्स में एरो नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दोनों तरफ कर्व जो है एक्सटेंड हो रही है, लेकिन ये एरो में रिमूव कर रहा हूँ, एरो होता नहीं है नॉर्मली। और इसका जो मिनिमम पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट इज 1 and y coordinate is 2. What is the domain and range of this function? डोमेन मीन यू नीड टू सी के कौन सी x वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अब्दुल्ला डोमेन हुई जी। समीम सर y is greater than equal to 2 होगा, and x will be डोमेन all, फर्स्ट, ये range है सर, and x जो domain होगी that will be all real numbers. करेक्ट। यस, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। डोमेन मीन x की इस वैल्यू 1 के अगेंस्ट ग्राफ है, 0 के अगेंस्ट ग्राफ है, -1 के अगेंस्ट ग्राफ है, -2 के, इवन लेफ्ट साइड भी एक्सटेंड होता रहेगा तो हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट। सो द ग्राफ इज देयर फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x। सो डोमेन इज all real number, but range, there is no graph for y is equal to 1। y is equal to 1 के अगेंस्ट कोई ग्राफ नहीं। y is equal to 2 के अगेंस्ट ग्राफ बिल्कुल है, y is equal to 3 के अगेंस्ट भी है, बट y is equal to 2 से लेस मीन y is equal to 1 में नहीं है, y is equal to -1 -2 के अगेंस्ट देयर इज नो ग्राफ। सो आपका कंप्लीट ग्राफ y is equal to 2 और उससे ऊपर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो रेंज वो वैल्यूज ऑफ y होती है जिसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। तो y की कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है? y is greater than equal to 2 के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये जो मिनिमम पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है ये हमें रेंज फाइंड करने में हेल्प कर रहा है यहाँ पे। तो कहीं पे क्वाड्रेटिक फंक्शन आया और उसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट को देख के हम इसकी रेंज डिसाइड किया करेंगे आने वाले क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको बड़ी आइडिया सुनाई हुई मीन डोमेन और रेंज उन फंक्शन का फाइंड करने के लिए क्या जिनका ग्राफ मैं आपको दे मीन आहिस्ता आहिस्ता में ग्राफ से इक्वेशंस की तरफ ट्रांसफॉर्म हो, फिर इक्वेशन को देख के आपने उसकी डोमेन और रेंज बतानी होगी। ग्राफ मैं नहीं ड्रॉ किया करूंगा, आप अपने माइंड में स्केच किया करें, आपके माइंड में ग्राफ चलेगा। लेकिन अभी मैं उस स्टेज तक लेके जा रहा हूँ ऐसा ऐसा। एक और ग्राफ कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे आगे। तो कुछ ऐसा ग्राफ है ये। Here x is again 1 and this is 4. What is the domain and range of this function?
जी अब्दुल्ला, डोमेन डोमेन क्या, रेंज बताइए। y इज लेस देन इक्वल टू 4 इज द रेंज। अब आप देखिए x की वैल्यू 1 के अगेंस्ट ग्राफ है, 2 के अगेंस्ट, 3 के अगेंस्ट, -1। कौन सी x की वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ नहीं है? ये ग्राफ दोनों तरफ आगे एक्सटेंड हो रहा है इस तरीके से। सो देयर इज अ ग्राफ फॉर एवरी वैल्यू। सो डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर। जब कंप्लीट ग्राफ हो, वो क्वाड्रेटिक हो या स्ट्रेट लाइन हो, लीनियर, उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर होती है। ऐसे ही है ना? लेकिन अगर लीनियर ग्राफ हो, उसकी रेंज भी ऑल रियल नंबर होती है। लेकिन क्वाड्रेटिक में बेशक ग्राफ कंप्लीट हो, उसकी रेंज कभी ऑल रियल नंबर नहीं होती, क्योंकि कुछ एक पोर्शन होता है ग्राफ उससे या तो अबव एग्जिस्ट कर रहा है, या एक पोर्शन ऑफ ग्राफ एक पॉइंट से बिलो ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा होता है। सो ये तो ग्राफ जब दिया हो, आप उसको देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं डोमेन और रेंज। लेकिन नॉर्मली ग्राफ आपके पास नहीं होगा, ये एक आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। अब हम आते हैं इक्वेशंस की तरफ। स्ट्रेट लाइन जितनी भी होती हैं, अगर आप देखें स्ट्रेट लाइंस, ये जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, अगर मैं डोमेन मेंशन ना करूं, अगर डोमेन मेंशन ना करूं, तो कंप्लीट ग्राफ अगर आप देखें तो वो राइट लेफ्ट दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है, और इस तरह अप और डाउन भी एक्सटेंड हो रहा होता है। मीन अगर आपके ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट ना किया जाए, कोई भी फंक्शन हो, अगर वो लीनियर फंक्शन है लाइक 3x-1, अगर मैंने इसकी डोमेन आपको नहीं बताई और आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसकी डोमेन भी क्या होगी, रेंज भी क्या होगी, तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर होगी और रेंज भी ऑल रियल नंबर। लेकिन याद रखिए, अब थोड़ा सा इसको यूं भी समझिए कि डोमेन और रेंज सिर्फ रियल हो सकती है, नॉन रियल कोई ऐसा नंबर पुट करने से अगर आंसर नॉन रियल आ रहा है तो वो डोमेन और रेंज का पार्ट नहीं होगा। नॉन रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल तो बहुत से हमें पता है, नॉन रियल कोई एक नॉन रियल नंबर की एग्जांपल दे, ताकि पता चले कि आपको नॉन रियल को पता है कि नॉन रियल नंबर कैसा होता है। आयोटा वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाता है ना, -1, -2, -3, -4, ये नंबर्स ये क्या होते हैं? ये रियल नहीं होते। ये ना ही डोमेन का पार्ट हो सकते हैं, ना ही रेंज का पार्ट हो सकते हैं। सो आपकी डोमेन और रेंज में नॉन रियल नंबर कभी नहीं होते। सो एक वो नंबर जिसके अंदर अंडर रूट के अंदर -1, -3, -4 आ जाता है, ये नॉन रियल है। इसके अलावा एक और नंबर भी होता है जो कि नॉन रियल होता है। ऐसे नंबर जिनके डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, वो कैलकुलेटर में पुट करें ना, 1/0, 3/0, 4/0, वो मैथ एरर देता है। So anything divided by 0, 1/0, 5/0, -2/0, these are also non-real number. So ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं आती। कभी ऐसा हुआ कि एक्स में कोई नंबर पुट करें तो आंसर नॉन रियल आए? ऐसा इस एटलीस्ट लीनियर इक्वेशन में कभी नहीं होता। सो लीनियर इक्वेशन में अगर आप रियल नंबर पुट करें तो हमेशा आंसर रियल ही आता है। सो अभी तक ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सो लीनियर के केस में अगर डोमेन या रेंज रिस्ट्रिक्ट नहीं की, नंबर 1, अगर आपको डोमेन खुद बतानी हो तो आप कह सकते हो कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड रेंज, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है देन रेंज इज आल्सो ऑल रियल नंबर, राइट? लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके खुद दे, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मीनिंग है? कि पहले था ग्राफ y = 3x-1, वो दोनों तरफ इंफिनिटली इंक्रीज कर रहा था, ऐसा ग्राफ था। लेकिन अब अगर मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर तो ग्राफ भी उसके मुताबिक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर मैं कुछ पोर्शन ऑफ ग्राफ को सिर्फ डिस्कस करूं, अगर मैं अब आपको बता दूं कि इस ग्राफ की डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5, तो अब कौन से पोर्शन ऑफ ग्राफ की बात हो रही है जो 1 से 5 के दरमियान है?
तो बताइए इसके अगेंस्ट रेंज क्या होगी? डोमेन पुट करने से रेंज मिल जाती है। तो आप 1 पुट करो और इस तरह 5 पुट करें। इफ यू पुट 1, व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट 2। और अगर आप 5 पुट करें तो इट इज 14। So if domain is 1 to 5, then range is 2 to 14. इसको मैं थोड़ा ग्राफिकली आपको शो करता हूं। हमने अब ग्राफिकली इसका क्या मीनिंग है। ये ग्राफ कैसा है? एक ऐसा ग्राफ है जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव 3 और वाई इंटरसेप्ट -1। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ होगा ना। ये वाई एक्सिस कहां पे कट कर रहा होगा? -1 पे। ऐसा ही है। लेकिन अब मैंने क्या करना है, ये इसके लिए ग्राफ बिल्कुल ठीक है। डोमेन इज ऑल रियल नंबर, रेंज इज ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर मैंने सेकंड पार्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मुझे ग्राफ कितना ड्रॉ करना है? सिर्फ x1 से लेकर 5 तक ग्राफ स्केच करना है। अब ये एरो खत्म हो जाने चाहिए। देखिएगा, मैं अब ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ सेकंड पार्ट के मुताबिक करूंगा। मीन 1 से लेकर 5 तक मुझे ग्राफ सिर्फ स्केच करना है 1 2 5। So this is 1, x is equal to 1। मुझे बताइए 1 के अगेंस्ट y वैल्यू क्या आ रही है? 2। तो इसका मतलब दिस इज 2। सो 1 से मुझे स्केच करना है 5 तक, से दिस इज 5। और 5 के अगेंस्ट y वैल्यू इज, so it is 14। So this is the portion of graph for second part only, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे एंड हो रहा है। 1 2 5। अब ग्राफिकली आप डोमेन और रेंज जरा देखिए। ग्राफिकली क्या आपको समझ आ रही है इसकी? डोमेन 1 से लेकर 5 तक। सो 1 से 5 के मिडल में x वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है, और y की कौन सी वैल्यूज के अगेंस्ट? 2 और 14 के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये ग्राफ आपको जब तक कहे ना आप स्केच नहीं करेंगे। ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता डोमेन और रेंज टॉपिक मुश्किल होता जाएगा। अगर आपको इसकी बेसिक्स मीन ग्राफिकली आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तो फिर आगे क्वेश्चन में थोड़ी सी आसानी होगी। अच्छा जी, इसी का अगर मुझसे आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि अब मैं डोमेन इसकी कह रहा हूं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अगर मैंने डोमेन आपको रिस्ट्रिक्ट करके दे दी है, फुल डोमेन नहीं है, ऑल रियल नंबर नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करके डोमेन दे दी, तो बताइए व्हाट विल बी द रेंज? एट नहीं, y इज समथिंग ग्रेटर देन लेस देन, कुछ ऐसा होना चाहिए। ओके, 3 आपने पुट किया, 3 3 9, 9 - 1 is 8। So you are saying y is greater than equal to 8। ये ग्रेटर देन 8 तो मुझे समझ आ रहा है आपने कैसे डिसाइड किया। 3 पुट किया, 8 आ गया। लेकिन ये इनइक्वालिटी का साइन कैसे डिसाइड किया आपने? ग्रेटर देन है या लेस देन? रिदा कैसे डिसाइड किया है ना? या आप अगर डिसाइड करेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे? है ये ठीक? क्या हमेशा ग्रेटर होगा? क्या डोमेन में जो साइन होगा वो हमेशा रेंज में वही साइन होगा? जरूरी नहीं है। यहां पे क्यों पता चल रहा है कि जो डोमेन का साइन है वही रेंज का? उसकी मल्टीपल रीजन है। उनमें से एक रीजन आप ये कह सकते हो कि ग्रेडियंट इसका क्या था? पॉजिटिव था। तो लाइन राइज कर रही थी ना, और जब लाइन राइज कर रही है तो एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रेडियंट पॉजिटिव का ये मीनिंग होता है।
सो अगर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो y भी ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग होगा। अगर x समथिंग लेस, x की वैल्यू से लेस है तो y भी लेस होगा, क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव है, लाइन राइज कर रही है। लेकिन अगर इसका ग्रेडियंट होता -3, अगर ग्रेडियंट होता -3, तो आपको पता है नेगेटिव ग्रेडियंट में लाइन फॉल कर रही होती है, और जब लाइन फॉल करती है तो x हालांकि इंक्रीज कर रहा होता है और y डिक्रीज कर रहा होता है। तो ये इनइक्वालिटी का साइन आपने कैसे डिसाइड किया? आपके माइंड में इसका ग्राफ था। ग्राफ मीन ग्रेडियंट के थ्रू आपके माइंड में ग्राफ आया। ग्रेडियंट पॉजिटिव मीन ग्राफ इज राइजिंग। तो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो y इज आल्सो इंक्रीजिंग। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव होता है तो x इज इंक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग। ठीक है। लेकिन अगर किसी ऐसे फंक्शन के बारे में आपको पूछा जाए इनइक्वालिटी, और उस फंक्शन का ग्राफ ही आपके माइंड में ना हो, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो बहुत इजी था, क्वाड्रेटिक्स भी आया तो भी आपके माइंड में होगा ग्राफ। लेकिन अगर कोई ऐसे ग्राफ्स आ गए जो जिनके बारे में आपको पता ही ना हुआ, फिर उनका इनइक्वालिटी का साइन कैसे डिसाइड करेंगे? उसका एक तरीका ये है, जरा सुनिएगा आप। इसके लिए मेथड करो कि इनइक्वालिटी के साइन के लिए कैसे डिसाइड करेंगे। लीनियर के लिए नॉट अ बिग डील, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये आगे वाले कुछ क्वेश्चन के लिए जहां पे इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करना इश्यू होगा, वहां के लिए बता रहा हूं कि आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 पुट करना, 3 पुट करना और आंसर आ जाएगा 8। ठीक। अब आप इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सो आप देखिए डोमेन 3 से ग्रेटर है ना, सो 3 से ग्रेटर कोई एक नंबर ले, 4 ले लें। 3 से ग्रेटर डोमेन है ना, 3 से ग्रेटर, तो आप 3 से ग्रेटर कोई एक नंबर 4 ले लें, 4 पुट करें और आप वो देखिए कि उसका आंसर आपका 8 से ग्रेटर आ रहा है या लेस आ रहा है। अगर आपका आंसर 8 से ग्रेटर आ रहा हुआ तो इसका मतलब रेंज 8 से ग्रेटर होगी, और अगर आपका आंसर 8 से लेस आ रहा हुआ तो इसका रेंज आपकी लेस होगी। तो इसमें 4 पुट करें तो 4 से 12, 12 माइनस 1 इज 11। आपका आंसर 11 आ रहा है, मीन 8 से ग्रेटर आ रहा है। सो आपकी रेंज होगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया ना, रेंज की इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करने के लिए करने वाला, इसको मैं आगे भी फर्दर कुछ एग्जांपल्स में आगे डिस्कस करूंगा। अभी एक और क्वेश्चन, f of x इज इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5। ये कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको मैंने बता दी इसकी डोमेन क्या है। अगर मैं डोमेन भी ना बताऊं तो बताइए डोमेन क्या होगा। कौन सी एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता? कोई ऐसी एक्स की वैल्यू है? हर एक्स वैल्यू की अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। या अगर मैं ये देख पूछूं कि क्या कोई ऐसी एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू है जो पुट करने से आंसर रियल नहीं आता? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। सो हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। आप क्वाड्रेटिक कर्व अपने माइंड में रखें। सो इसकी डोमेन होगी ऑल रियल नंबर। और अगर ये बात नहीं समझ आती तो देखिए थोड़ी देर पहले हमने क्वाड्रेटिक कर्व जो ड्रॉ की थी, तो दोनों की डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर, क्योंकि हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। इसकी रेंज बताइए। यस अब्दुल्ला, कैसे? अगर क्वाड्रेटिक्स टॉपिक वीक है, फंक्शन नहीं मुश्किल हो जाएगा बहुत, या उसकी अगर प्रैक्टिस कम है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। हो सकती है। नहीं, सॉरी, इस चलो मैं आपको कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। इक्वल हो सकती है किसी केस में, लेकिन इसमें तो नहीं है एटलीस्ट। इसमें डोमेन क्या है? हर ऑल रियल नंबर, मीन हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आपका ग्राफ स्केच करो ना क्वाड्रेटिक कर्व, हर एक्स वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है। लेकिन रेंज क्या है? क्वाड्रेटिक ग्राफ y की हर वैल्यू के अगेंस्ट एग्जिस्ट नहीं करते। इसके वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स क्या है अब्दुल्ला?
अब्दुल्ला ये टॉपिक तो हम कर चुके हैं, ये तो मसाइल हैं फिर बहुत ज्यादा। जी समीन, what are the coordinates of the vertex? Sir, 1 and 5. 1 and 5, ये x कोऑर्डिनेट होता है, साइन चेंज करते हैं, और ये बाहर वाला y कोऑर्डिनेट। सो 1 and 5, ये 1 and 5 बता रहा है कि इसका जो मिनिमम पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 5 होगा। तो इसकी रेंज क्या बनी, जो रिदा ने बताई, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कैसे बताइए? अगर आप देखें कैसे आप रिदा ने आंसर बताया होगा या जिन लोगों ने किया, उन्होंने सोचा कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा। उन्हें पता चल गया कि इसका वर्टेक्स कोऑर्डिनेट 1 5 है, x1 y 5 है, ये वर्टेक्स है। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। तो हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है, x इक्वल टू 1 पे भी है, x इक्वल टू 2 पे भी है, x इक्वल टू 3 पे भी है, x इक्वल टू 0 -1। सो इजलाल हर x वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ है, लेकिन y की हर वैल्यू के अगेंस्ट ग्राफ नहीं है। y इज इक्वल टू 5 के अगेंस्ट और 5 से ऊपर ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। y is equal to 4 3 2 1 0 -1 -2 पे there is no graph, so the range is y is greater than equal to 5। so ये मैंने फिर ग्राफ स्केच करके आपको बताया है, लेकिन ये नेक्स्ट टाइम ग्राफ की हेल्प नहीं हमें चाहिए, हमें ये मेंटली पता होना चाहिए। हमारा क्वाड्रेटिक्स टॉपिक, ये वर्टेक्स और ये ग्राफ हमारे माइंड में होने चाहिए, और फौरन से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। और आपको ये कैसे पता चला ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है? ये हमें ग्राफ की शेप पता है कि इसके केस में ग्राफ अपवर्ड ओपन हो रहा है। अगर इसके बाहर माइनस होता तो वो डाउनवर्ड ओपन होता, तो हम लिखते y इज लेस देन इक्वल टू 5। ओके, जितनी डोमेन और रेंज ये आज की है, प्लीज कल आने से पहले इसको रिवाइज करके आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।